I was in Banaras at that time when Srila Prabhupada was touring, traveling India with his 40 disciples. I read in a newspaper, in America, Krishna Bhakti is preached. Naturally, I was devotee of Krishna, so I liked this topic. So I went there. Then there was a procession from the Sasmed Ghat to Tapan Misra's house that is now in Banaras. When procession finished, I approached Srila Prabhupada and I spoke in Hindi. भगवान आप कब अमेरिका गए थे? When you went to America and how you preach? The Prabhupada said, you see, I just chant Hare Krishna and give some lecture. He said, they need this Vedic knowledge. So just see how they are happy and they are chanting. Then I asked, where is your program after Banaras? The Prabhupada said, I will go to Gorakhpur. So I wrote down the date. Then I went to Gorakhpur and Prabhupada was there. He was staying in Krishna Niketan. I went there. I was waiting. And Prabhupada was at that time alone. So I did not recognize that he is Prabhupada. Where is A.C. Bhaktivedanta Swami? I asked Prabhupada. So Prabhupada asked me, why you want to meet with him? So I replied, because he is my guru. I like him very much. So Prabhupada asked me, why you accept him as your guru? So I said, because he is the servant of Chaitanya Mahaprabhu. Then Prabhupada asked me, who is Chaitanya Mahaprabhu? So I said, he is Krishna himself. So I was talking and Prabhupada asked, why you accept Lord Chaitanya as Krishna? So because I read Chaitanya Charitamrita, Krishna himself came as a devotee to preach. Then Prabhupada said, no, he is not Krishna. He is devotee of Krishna. I said, no, he is Krishna himself. The Prabhupada insisted, no, he is devotee of Krishna. He is not Krishna. Then I spoke very hard words to Srila Prabhupada. I said, bas chup rahiye, just keep quiet, don't speak anymore. Oh. Then Prabhupada laughed very loudly. Very loudly he was laughing. Then some bhaktas came and they were offering obeisances. So I realized that he is Guru Maharaj, he is Srila Prabhupada. So when they offered obeisances, I also offered obeisances. And so I said, please forgive me. I offended at your lotus feet. I did not recognize you. Please forgive me. Then Prabhupada caught my hand like this and come to my room. Then 3 disciples were sitting there. And Prabhupada was laughing. His smile was not stopped. And then he told that he knows that Chaitanya Mahaprabhu is Krishna himself. So he said, you chastised me, I like that. I am very happy with your words. जय रिदम तपसा सृष्टम मुख पुंस परस ये। देवयानी बोल रहे कि हम लोगों ने जिनके द्वारा इस विश्व की सृष्टि हुई है, वास्तव में ब्राह्मणों के द्वारा ही सब सृष्टि हुई है। ब्रह्मा जी के पुत्रों ने सृष्टि किया है। इसको कह रहे हैं कि हम लोग जगत पिता हैं, हम लोग जगत की माँ हैं, हमारे द्वारा सृष्टि हुई है, ब्राह्मणों ने सृष्टि किया है। जय रिदम तपसा सृष्टम, और ब्राह्मणों ने तपस्या करके विश्व में सृष्टि की है, बहुत बड़ा तप किया।
नियम का पालन किया तब विश्व सृष्टि करने में समर्थ हुए। हम लोग सृष्टि किए हैं। वास्तविक बात यह है, जितने भी जीव जन्म लिए हैं सब ब्राह्मणों के द्वारा जन्म दिए गए। आजकल किसी के यहाँ पूछिए आपका गोत्र क्या है। गोत्र का अर्थ होता है वंश प्रवर्तक, वंश चालू करने वाला। कोई ऐसा नहीं है जिसका वंश प्रवर्तक ब्राह्मण न हो। कोई अत्रि गोत्र का है ना, और कोई वशिष्ठ गोत्र का है, कोई कश्यप गोत्र का है, कोई कुछ। केवल विदेश में, इंग्लैंड अमेरिका, इधर कुछ लोग कहते हैं कि हम बानर हमारा वंशज गोत्र है। कोई पागल डार्विन नाम का व्यक्ति लिख दिया कि हम लोग बानर से जन्म लिए, मंकी से जन्म लिए। उसे पूछा जाए तुम्हारा गोत्र क्या है तो कहेगा मंकी। तो हम लोग कभी ऐसा नहीं करते। भारतवर्ष में एक बच्चा भी इस बात को स्वीकार नहीं करता है कि हम मंकी से जन्म लिए। एक खेल करते हैं बच्चे बिहार में, गांव में खेलते हैं तो पहेली बुझावल बुझाते हैं। बुझावल समझते हैं ना, कोई चीज कह करके उसका अर्थ समझाना। तो एक पहेली है कि हरदी के गाब गो पीतर के लोटा, ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। तो वो इसका ये अर्थ होता है कि इसका मतलब है बेल फल। बेल फल जब पक जाता है तो पीतल के लोटा जैसा पीला दिखाई देता है, और उसके भीतर हल्दी के गाब गुब हल्दी के पेस्ट जैसा रहता है ना। पर ई कहानियां ना बुझे से बानर के बेटा। अगर इसको नहीं समझ पाएगा तो वो बानर का बेटा होगा। तो जो लड़के, जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं और उनको दूसरे लोग कहते हैं ये बानर का बेटा है, बानर का बेटा है, तो कितना डिस्टर्ब होता है। बाप रे बाप, हमको बानर का बेटा कहा जा रहा है, और इधर का विद्वान नोबेल प्राइज लेने वाला कहता है कि हम बानर के बेटे। वाह रे वाह, ये दिमाग देख। योजना थी जैसे श्रील प्रभुपाद का। श्रील प्रभुपाद बहुत व्यापक सोचते थे, उनकी दृष्टि बहुत बड़ी थी। वे केवल अपने विषय में या केवल भारत के ही विषय में नहीं सोचते थे, पूरे विश्व के मानवों का कल्याण करना चाहते थे। ये है सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। प्रभुपाद जी का ये हाई थिंकिंग था, ये विचार था। किसी बात को वे सबके लिए सोचते थे, कैसे विश्व का कल्याण होगा। इसी हाई थिंकिंग के कारण श्रील प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना किया। इंटरनेशनल सोसाइटी, वास्तविक सच्ची सोसाइटी यही है जो जीवों के, मनुष्यों के कृष्ण भावना को जगाने के लिए है। वो कृष्ण भावना हम में है, सब में है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कभू न। इसको बाहर से नहीं लाना है। हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, लेकिन डोरमेंट है, सो गई है। उसी को जगाना है। ये जगाने का जो उपक्रम है यही परोपकार है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जन्म सार्थक कर करी परोपकार। तो परोपकार अवश्य करना है, भक्ति करनी है, इसके साथ प्रचार करना है। जितना हो सके, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, जितना हम प्रचार कर सके करना चाहिए।
प्रचार करने पर भगवान शक्ति देते हैं, प्रचार करने की और सफलता देते हैं। कभी निराश नहीं होना चाहिए कि लोग बदल नहीं रहे हैं। भगवान की शक्ति से बदल सकता है। एक बार की कथा है, जब भगवान समुद्र पर पुल बांध रहे थे लंका जाने के लिए, तो बहुत चौड़ा पुल था, बहुत लंबा समुद्र को पार करना था। समुद्र में बड़ी भीषण लहरें उठ रही थी और इंजीनियर 2 बानर थे, नल नील। तो बहुत चिंता हो गई कैसे पुल बांधा जाएगा। फिर भी बड़े बड़े बंदर जैसे हनुमान जी, अंगद आदि लगे हुए थे। ये बड़े बड़े चट्टान ला रहे थे, बड़े बड़े पहाड़ की चट्टान ला करके नल नील को देते थे पुल बांधने के लिए। तो पुल बंद रहा था। एक पर रा लिखा जाता था, एक पत्थर पर, एक पर माँ राम। दोनों पत्थर सट जाते थे राम नाम के प्रभाव से। तो पुल बंद रहा था। तो उस समय एक गिलहरी वहाँ आ गई रास्ते में। वो भी कुछ काम कर रही थी। तो श्री हनुमान जी ने शिकायत किया भगवान राम से कि ये रास्ते में आ रही है, दब जाएगी, मर जाएगी, इसको हटा देना चाहिए। तब भगवान ने कह दिया, तुम लोगों को जो करना है करो, उसको भी करने दो। पुल बनाने में वो भी कुछ कर रही है ना। वो 2 काम कर रही है। शरीर को पहले पानी में भेन लेती थी, शरीर को, समुद्र को इस तरह से सुखाना चाहती थी। पानी कितना सटेगा देह में, गिलहरी के देह में, और उसको ला करके पानी को बाहर झाड़ती थी। तो इस तरह से उसका विचार था कि मैं समुद्र को सुखा दूंगी, और इधर बालू पर आ करके अपने शरीर में बालू लपेटती थी, भींगे शरीर में बालू लपेटती थी और उसे पुल पर झाड़ती थी कि बालू उसे भरूंगी। जो फांका रह जाता है 2 पत्थर के बीच में, उस पर चलने में भगवान को चोट लगेगी, चरण में कोमल पुल बनेगी। तो वो काम कर रही थी, ये 2 काम, समुद्र को सुखाने का और पुल पर जो फांका रह गया है उसको भरने का काम, और 2 काम कर रहे थे, इसी में व्यस्त थी। और बानरों को डिस्टर्ब हो रहा था कि ये आ रही है, इस पैर पड़ सकता है। वो लोग उद्विग्न थे। भगवान से कहे, भगवान ने उस गिलहरी को सौभाग्य दिया, अपने कर कमल पर उठा लिया, हाथ पर उठा करके बाएं हाथ पर रख करके और दाहिने हाथ से उसको सहलाने लगे। वही भगवान के अंगुलियों के निशान बने हैं गिलहरी में, आज भी है। भगवान ने बानरों के सामने एक भाषण किया। ये केवल पुल बनाने में एक काम नहीं कर रही, 2 काम कर रही है। समुद्र को सुखाने का काम कर रही है और पत्थरों के बीच में जो गैप है उसको भर रही है। आप लोग बड़े बड़े चट्टान ला रहे हैं
ठीक है, लेकिन इसका जो सेवा, इसकी जो सेवा है वो भी पूर्ण है। तो कोई भी सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। कम देखने में लगे, लेकिन यदि नियत सच्ची है तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं, सराहना करते हैं। सभी बानरों के सामने भगवान ने गिलहरी की सेवा को बहुत अप्रिशिएट किया और हनुमान जी को मना किया कि आप अपना काम कीजिए, इससे डिस्टर्ब मत होइए। तो वो उतना बड़ा पुल बना, उसमें गिलहरी की छोटी सी सेवा थी, उसको भी भगवान ने सराहा। अतः किसी सेवा को छोटा नहीं समझना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये भगवान की शक्ति दुर्गा जी हैं जो सबको सुलाती हैं। सोना भी जरूरी है ना। कितने लोगों को नींद नहीं आती है तो पैसा खर्च करके नींद की गोली लेते हैं, और वो भगवान सबको फ्री में दे रहे हैं, सुला रहे हैं। इतना सुलाते हैं, कुछ लोग तो बहुत देर तक सोए रहते हैं। ये भगवान की शक्ति है, और जगाते भी हैं भगवान। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट। मैं सबके हृदय में हूँ, और मुझसे ही किसी को स्मृति मिलती है, विस्मृति मिलती है, ज्ञान मिलता है। मान लीजिए भगवान 9 जगह में सवेरे, तो आदमी ऑफिस जाना भूल जाएगा, है ना। सोया तो जगा देते हैं, स्मृति देते हैं कि तुम एक कर्मचारी हो या ऑफिसर हो, जाओ जाओ जाओ, या दुकान खोलने जाओ। सांसारिक स्मृति भी भगवान ही देते हैं, और विस्मृति भी देते हैं, नींद आदि, और ज्ञान किसी चीज का देते हैं। तो उनको सर्वभूताधिवास कहते हैं। भगवान सबके हृदय में बसते हैं, सभी जीवों के हृदय में। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। अर्जुन से कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय में रहता है। ईश्वर कौन है? मैं हूं जो सबके हृदय में है। भीतर से ही रह करके इस जीव को, देह को चला रहे हैं, अधिवास। बाहर से तो कंट्रोल कर ही रहे हैं काल रूप से, लेकिन भीतर परमात्मा रूप से चेतना दे करके सबको चला रहे हैं। तो भूताधिवास कहते हैं, सर्व जीवाधिवास, अधिवास। भगवान चला रहे हैं। जैसे कार के भीतर कोई ड्राइवर बैठकर कार को चला रहा है, वैसे भगवान भीतर बैठकर चला रहे हैं। जीव के भीतर है, देह के भीतर, प्रकृति के भीतर हैं, ब्रह्मांड के भीतर हैं, भीतर से चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि बाहर से पकड़ कर चला रहे हैं। ऐसा कोई करता है कि कार को बाहर से ठेल करके चलावे? नहीं, भीतर से चला रहा है। उसको भूताधिवास कहते। भगवान सब में स्मृति, ज्ञान, विस्मृति आदि दे करके सब दुनिया को चला रहे हैं, पोष रहे हैं चेतना के रूप में। सर्वभूताधिवासाय शांताय, और प्रभु बड़े शांत स्वभाव के हैं। शांत का अर्थ होता है जिसे भोगों की लालसा नहीं है। और एक और अर्थ भी है कि देवयानी ये कहती है कि प्रभु भक्त से कोई अपराध भी हो जाता है, आपके दास से, भक्त से कोई अपराध भी हो जाता है तो आप क्षमा कर देते हैं, आप दंड नहीं देते हैं। तो इस बात को स्वीकार कर रहे कि आपने हमको इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया, लेकिन मैं भूल गई थी, भोगों में भूल गई थी, आपका भजन नहीं की। हमारे उस अपराध को अवश्य आप माफ करेंगे। इसलिए भगवान को शांत कह रही। भगवान बहुत शांत स्वभाव के हैं वास्तव में। उस दिन सुना ना, भृगु जी लात मार दिए छाती में, फिर भी हाथ जोड़ करके चरण पकड़ करके क्षमा मांगने लगे। और दूसरे लोग शांत नहीं है, व्यग्र हैं।
आप अपने ही देश में देखिए, कार लेकर के अशांत भाग रहे हैं, इधर से उधर, इधर से उधर, इतना अशांत है कि अगर कहीं ट्रैफिक रुके और कोई पीछे से व्हिसिल दे दे तो क्रोध से पागल हो जाता है। हमने देखा है इस क्रोध को एक बार न्यूयॉर्क में। थोड़ा सा हमारे साथ जो भक्त चल रहे थे वो बाईपास किए, थोड़ा सा आगे बढ़ाए, उसको क्या कहते हैं, ओवरटेकिंग किए, और कारें धीरे धीरे चल रही थी। जो ओवरटेक करने में वो कार आगे वाली थोड़ा बाएं हो, नहीं दाहिने हो गई, दाहिने से कर रहे थे, उधर दाएं कार चलती है इसी देश जैसा। तो अब इस पर पीछे से भक्त ने व्हिसिल दे दिया और सीटी दे दिया। सीटी देने पर वो काली माता जी थी, काली स्त्री थी, वो आई और हाथ में एक बोतल ली थी, बोतल पानी का होगा चाहे शराब का, और हम लोगों का तो शीशा बंद था। उधर से आई और इतना क्रोध में शीशा पर पटकने लगी बोतल, लेकिन वो शीशा फूटा नहीं। तो हमने कहा कि ये तो काली माता जी पूरा आवेश में आ गई है, पूरा आवेश में आ गई है। लेकिन वो 2-3 बार बोतल पटकी, खूब हाको डाको की, इसके बाद चुप। अब तो जाना था, वो रास्ता को भी क्लियर करना था। तब तक हरा सिग्नल हुआ तो वो माता जी भी भागी, ये भी भागे, अब फिर चल दे। बताइए, जिस एक सीटी देने से जिसकी शांति भंग हो सकती है, लेकिन भगवान तो जो जगत के ईश्वर हैं, ब्रह्मा शिवादि के भी स्वामी हैं, उन पर लात मारने पर भी वे हाथ जोड़ रहे थे। इसको शांत कहते। भगवान अपने भक्त के अपराध को कभी नहीं लेते हैं, कभी नहीं। कभी कभी भक्त कहते हैं ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो, ये अपराध मत करो। जरूर अपराध नहीं करना चाहिए, लेकिन जो पहले अनजान में अपराध हो गया है तो उसके लिए कृष्ण कोई एक्शन नहीं लेते हैं, वो प्रेम करते हैं। इसलिए उनको शांत कह रही देवयानी कि हमसे बहुत अपराध हुआ, मैंने भक्ति नहीं किया, मैं भोगों में पड़ी रही, और आप हमारी गलती को क्षमा करेंगे। बृहते नमः, और बृहते का अर्थ होता है ब्रह्म, बड़ा। आप सब तरह से महान हैं, बड़े हैं। बृहत ब्रह्मणे नमः, आप सब तरह से बड़े हैं, आप कोई मनुष्य नहीं हैं, देवता नहीं हैं, आप सबके ईश्वर हैं, सबके मालिक हैं। आपका गुण महान है, आपका सौंदर्य, आपकी दया महान है, तो हे प्रभु हमको माफ कीजिए। इस तरह से वो रात दिन कृष्ण का भजन कर रही थी, जप कर रही थी, प्रणाम कर रही थी। अतः उसका मन कृष्ण में पूरा पूरा रम गया, और कृष्ण में मन लगा करके उसने यह शरीर छोड़ दिया, कर्म बंधन से पार हो गई। तो वो अभी भगवान के पास गई, ये पहले वाक्य से समझ लेना चाहिए। इस तरह देवयानी भगवान कृष्ण को प्राप्त की, और जजाति महाराज भी।